Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students to the third class of business. I hope you have gone through the contents of the previous two classes and you are clear about all the contents which we have covered till yesterday. Today we are moving on and going to study some new topics, in which the first one is scarcity and choice. Scarcity means that resources are limited and we have unlimited wants. So these unlimited wants cannot be fulfilled by these scarce resources. This is all true for the individuals as well. You are well aware that the income is also limited. So with this limited income, you have to fulfill some of your wishes and you have to forego some of your wishes as well. So you cannot buy everything you want. So you must choose between different alternatives. Your time is also limited. You have to allocate your time according to the needs of your needs and will of yourself. You cannot do everything you want. So you are forced to choose between different alternatives. Like if you choose to spend the day at the park, so you give up going to the class. Similarly, if you choose to keep on sleeping, so it means you are giving up the class. So all the resources which we discussed, the factors of production, all are limited. And using these limited resources, we have to fulfill our wishes. So naturally, we have to forego some of our wishes and we have to fulfill some of the wishes. So based on this scarcity and choice, we have a term, economic term, which is called the opportunity cost. What is this? It's a benefit, a profit, or value of something that must be given up to acquire or achieve something else. So what does it mean? That you are getting something and giving up some other thing. Since every resource, that is land, capital, labor, time, etc., can be put to alternative uses, every action, choice, or decision has an associated opportunity cost. Means consumers have to choose what to buy. You are very well aware. So in the economic term, the opportunity cost is defined as the benefit of the next most desired option which is given up. So if you see in the figure, there are two choices available, whether you can choose an iPod or you can go for the joggers, Michael Jordans, right? So if you choose iPod, it means you are giving up the joggers. So the cost of joggers is the opportunity cost. Similarly, if you want to buy a book, you have limited income, you have limited money in your pocket. So there are two choices, whether you want to watch a movie in a cinema or you want to buy a book. So if you choose a book, then the cost of that movie will be the opportunity cost because that has foregone by you. And if you choose watching the movie in the cinema, it means the cost of the book is the opportunity cost that has been foregone by you. So this is the opportunity cost concept, and it is applicable
all over the world, all over the things, all over the resources, because you have to choose something and you have to leave something. And this applies on all the economic situations in all the governments as well. So government can decide whether to buy the arms or build the hospitals. If they go for the hospitals, it means they are losing, they are leaving to buy the arms and ammunitions. That is the opportunity cost. And if they go for the arms and ammunitions, then the building the hospitals is basically the opportunity cost. Okay, then we come to the role of entrepreneur. Who is entrepreneur? You know, someone who takes the bold decision of setting up a new business, who takes the financial risk and start a new venture. So though entrepreneur is taking the financial risk, but he is also starting up some new idea, some new venture as well. It's a very important person in any new venture. So we'll see what are the characteristics of this entrepreneur. So the first one is the entrepreneur must be innovative. Means to compete with the larger firms, entrepreneurs need to have creative product design, bold marketing strategies, and innovative solutions to managerial problems. See, innovation. You can have an example of like this. If somebody wants to set up a fast food restaurant in Sialkot, suppose. So what he has to do, because there are a number of fast food restaurants in Sialkot which are operating and number of brands which are operating. So, oh, sorry, I would like to shift to Urdu as well because somebody asked me to use Urdu. Okay. तो अगर कोई यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाना चाहता है तो क्या ऐसी चीज नहीं लेके आएगा कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों? Because everybody is offering pizzas and burgers and chicken and some all the things like that. तो भाई जो नया आएगा एटलीस्ट ट्राई तो किया कि भाई ये क्या चीज है, क्या नई चीज आ गई है. सिमिलरली जो भी यहाँ पे नया सेटअप करने की कोशिश करेगा उसको कुछ ना कुछ नया जरूर ऑफर करना पड़ेगा, एल्स he will not be a successful entrepreneur. Okay. Then the next characteristic is he must be a committed and self-motivated person, because they are so committed to their companies. Entrepreneurs are willing to make personal sacrifices to achieve their goals. They are so motivated to be successful. They are so competitive to have a high need for achievement. So they sacrifice their time, their personal goals, their personal achievements in order to be successful in the business environment. Why they are competitive, why they are self-motivated? Because they have an inner desire to succeed in the business world, in the business environment. The
sector in which they have offered something new. Okay, the third one is that they must be multi-skilled. So an entrepreneur will have to make the product or services, whatever it is, promote it, sell it, and keep accounts. So a person should be aware of all these tasks. So these different business tasks require a person who has many different qualities, such as being keen to learn technical skills, being able to get on with people, means he should have people management skill, and be good at handling money and keeping accounts and records. We don't mean that he should be expert in all the things, but it means that he must be having the knowledge of all these things. He must be having the knowledge of market. He must be having the knowledge of marketing tactics. He must be having the knowledge of production methods. He must be having the knowledge of managing the people. He must be having the characteristic is the leadership skills. Leadership skills means their ability to spot trends and act on them. And this sets entrepreneurs apart from small business owners and managers. Is they are leading, they are taking the people along with them. They are individualistic and self-starter. They prefer to lead rather than follow. Right? Okay, then the next characteristic is the self-confidence and an ability to bounce back. Means they understand the challenges of starting and operating a business and are decisive, and they are confident in their ability to solve all the problems. They do not fear the failure. They believe in try again, unless the success becomes the part of their daily routine. This is a most important characteristic of any entrepreneur or any business having person who is going to start a new venture. Okay, the next is risk taking. Although they are not averse to risk, so most of the successful entrepreneurs favor business opportunities that carry a moderate degree of risk. Remember, moderate degree of risk, where they can better control the outcome over highly risky ventures, where luck plays a large role. What does it mean? It means they take risk, but not at the start a very high risk, a very huge risk. They take small risk, keeping the market situation, keeping the market research in mind. A little bit risk. As I said, I gave you the example of Paralicious. What they did, they took the risk of introducing the fast food again in the market where already a number of fast food providers are there. What they did, they took the risk, a moderate risk, and introduced a new innovative product in the shape of peri-peri chicken. So they remain, I think, successful. They are still operating. Okay, then, what is the bounce back? Means it's a characteristic, as you know, the bounce backing characteristic of ball is like try again unless you succeed. The next characteristic is they are hardworking. They work long hours, 7 days a week, without having a break. They prefer to work for their success, to achieve their goal.
they don't rest, and they are optimistic. Means they always think positively. If they keep on thinking about failures, then they may not succeed. They think about the success. They are basically viewing the good side of the picture, not the bad side of the picture. So these characteristics make them a good entrepreneur who takes risk and try to innovate and try to start a new venture in the market. Now, what are the challenges that are faced by the entrepreneurs? The first challenge is identifying successful business opportunities. जैसे हमने पहले बात की कि भाई अगर यहाँ पे पहले ही बहुत से फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं तो फिर हम कैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुरू कर दें, राइट? सिंपल सी एग्जांपल, हम अगर यहाँ पे दही भल्ले लगाना चाहते हैं, हम दाल चावल शुरू करना चाहते हैं, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप या मोबाइल शॉप बनाना चाहते हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाएगी? किसी भी चीज को उठा के देख लें, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में रूम कहां पे है, गैप कहां पे है, उस गैप को फिल करना है हमने कोई नई चीज लेके आनी है, तब जाके हम ये सोच सकते हैं कि हम सक्सेस के करीब जा सकते हैं. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द न्यू वेंचर्स दे फेल in the first year of their startup because they have not introduced something new, something innovative that attracts the people. बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं अपने लिए, मगर वो ये कर नहीं पाते. क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क है, हर किस्म का रिस्क है, और सबसे बड़ा रिस्क जो है वो फाइनेंस का रिस्क है. अब आइडिया लेना है कि भाई हमने नया कोई सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है. नेचुरली स्टार्ट में तो सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल तो बाद में होगा, लेकिन एक नया आइडिया, तो नया आइडिया कहां से आएगा? देखें, मुख्तलिफ आपके पास सिनेरियोज हैं नए आइडिया के लिए. यू कैन हैव द आइडिया फ्रॉम योर ओन स्किल्स एंड हॉबीज. मतलब एक बंदा जो गार्डनिंग का शौकीन है, उसकी हॉबी है गार्डनिंग, तो वो गार्डनिंग की शॉप खोल सकता है जहां पे वो मतलब फ्लावर पॉट्स बेच सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है हाउ टू ग्रो डिफरेंट फ्लावर्स, हाउ टू प्लांट डिफरेंट ट्रीज. तो ये क्या, ये एक उसका बिजनेस वेंचर बन जाएगा जो बेस कर रहा होगा उसकी अपने स्किल्स पे, उसकी अपनी हॉबीज पे. फिर कहां से ले सकता है कि अपना प्रीवियस उसका कोई एक्सपीरियंस है, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके वो नया अपना बिजनेस वेंचर शुरू कर सकता है. इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि कोई शेफ है, लाइक यहां पे किसी भी शॉप पे वो काम करता रहा, अब उसको शेफ को कुकिंग तो आती है, वो सब कुछ बना सकता है, तो वो ये सोच सकता है कि व्हाई शुडंट आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑफ माय ओन. रिस्क तो है, लेकिन he knows all the pros and cons of cooking, not the business. तो वो अपने इस एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो अपना एक सेटअप बना सकता है. एक हेयर ड्रेसर के पास एक बंदा जो उसका एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है उसके पास, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, और फिर वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं. तो वो उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो अपना सैलून बना सकता है. अब वो सैलून, देखें, हेयर ड्रेसिंग का तो उसको पता है, उसको सारे उसके टैक्टिक्स का पता है, लेकिन बिजनेस टैक्टिक्स का तो नहीं पता, उसको मार्केटिंग का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि कैसे उसने अपने आप को प्रमोट करना है. सो नेचुरली दिस हैज टू लर्न. जब वो लर्न करेगा, साथ साथ अगर बिजनेस स्टार्ट करता है और साथ साथ अपना उसका लर्निंग जारी रहती है, तो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. एल्स, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टार्टअप. फिर
डिफरेंट अगर एक शख्स है जो मतलब डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, कोई फ्रेंचाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकता है करता है, तो वहां से उसको एक फ्रेंचाइजिंग का आइडिया हो जाता है, वो एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो बहुत से ये फ्रेंचाइजिंग बिजनेसेस हैं, जैसे आपका पिज्जा हट है, जैसे आपका केएफसी है, मैकडोनल्ड्स है, ये सारे क्या है, इन्होंने फ्रेंचाइजीज ली हुई हैं। तो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी बैक पे वो फ्रेंचाइजर है जो ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है द वर्ल्ड ओवर, तो वो आपको सपोर्ट करे। हम मार्केट, छोटी सी मार्केट रिसर्च करके भी हम देख सकते हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो नया आइडिया लेके आ रहे हैं, उसमें कहां तक सक्सेस के चांसेस हैं। तो यहां इस तरह से हम अपने कोई डिफरेंट जो बिजनेस वेंचर्स हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज जो आ जाता है एंटरप्रेन्योर के लिए, वो आ जाता है विच इज अ मेजर चैलेंज फॉर एनी न्यू स्टार्टअप, दैट इज सोर्सिंग कैपिटल और सोर्सिंग द फाइनेंस। नाउ आपने डिसाइड तो कर लिया कि भाई मेरा ये नया बिजनेस है, आपने सब मार्केट रिसर्च कर ली, आपने देख लिया कि मैंने ये इनोवेशन लेके आनी है। मसला कहां पे आएगा कि कहां से मनी आएगी। Almost all the entrepreneurs lack sufficient finance. They don't have their own money as well. If they have, that money is not enough to start that business. और अगर स्टार्ट भी कर लेते हैं, कहा यह जाता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो कम से कम आपके पास इतनी फाइनेंस होने चाहिए कि विदाउट हैविंग एनी प्रॉफिट यू कैन बेयर एटलीस्ट फॉर द 6 months। चाहे आप ब्रेक इवन पे रहो या ब्रेक इवन से भी नीचे रहो, थोड़ा सा लॉस भी आए, लेकिन 6 महीने तक आप बेयर करने के काबिल हो, तो ये जरूरी है जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो। फिर उनके साथ एक चैलेंज ये आता है कि उनके पास फाइनेंस तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है कि भाई ये फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से लें, या कोई गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल ग्रांट्स दे रही है या कोई और इंस्टीट्यूशन है जो हमें सपोर्ट करेगा या हमें ग्रांट दे देगा, वो इस चीज से भी अवेयर नहीं होते। उनके पास कोई प्रीवियस ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स भी नहीं होते जो वो प्रेजेंट्स कर सकें किसी बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और प्रेजेंट करके बता सकें कि हम प्रीवियसली 6 महीने साल से हम अपना काम कर रहे हैं और अब हम अपने बिजनेस को एक नाम दे के एक प्रॉपर हम बिजनेस एंटिटी के तौर पे रजिस्टर करके हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो दे डोंट हैव द रिकॉर्ड टू प्रेजेंट सो दैट बैंक्स कैन सपोर्ट देम। ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम है, चैलेंज है। और एक और जो कि वो अगर बिजनेस प्लान, अब वो तो उनको बिजनेस प्लान बनाने का पता ही नहीं होता कि व्हाट इज अ बिजनेस प्लान। और बाय द वे वी आर गोइंग टू स्टडी द बिजनेस प्लान एट लेंथ, लेकिन वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो बिजनेस प्लान का पता ही नहीं कि भाई ये क्या चीज है। और अगर वो बनाएंगे भी तो एक बहुत ही पुअर सा बिजनेस प्लान बनाएंगे जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कन्विंस ही नहीं कर पाएगा। जब वो कन्विंस नहीं कर पाएगा तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे, वो नहीं करेंगे, सो दे वुड बी रिलक्टेंट। तो देख ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है फॉर एनी न्यू स्टार्टअप कि भाई कहां से पैसे लेके आए। अब अगर अपने पैसे लगा भी दें, जो उनके पास कोई सेविंग है भी, तो अब आगे चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है उनका। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो डे टू डे आपकी रनिंग है, जो एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने के लिए जो आपको मनी चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब आपने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट चैलेंज इज डिटरमिनिंग आवर लोकेशन। अगेन जो ज्यादा किया जाता है कि भाई नया बिजनेस हम स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन कहां पे स्टार्ट करें, कौन सी ऐसी प्रॉपर जगह है, क्या जगह हम अपनी परचेज करें या जगह रेंट पे ले लें। अगर जगह परचेज करते हैं तो नेचुरली आपके पास पहले ही लिमिटेड फाइनेंस है, तो वो लिमिटेड फाइनेंस वहां पे यूज होगी, तो आगे क्या करेंगे।
राइट? अगर जगह रेंट पे लेते हैं तो नेचुरली यस यू आर सेविंग द मनी दैट वुड बी यूज्ड इन द कमिंग टाइम। अब जगह लेनी कहां पे है? जो भी हमने लोकेशन डिसाइड करनी है वो हमने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के अकॉर्डिंगली डिजाइन करनी है, ठीक? लाइक अगर हम सैलून, हेयर ड्रेसिंग सैलून बना रहे हैं तो हेयर ड्रेसिंग सैलून हम शहर से बाहर नहीं बना सकते भाई, वहां पे तो आबादी नहीं है, वहां पे कौन आएगा आपके पास? तो यू हैव टू बी इन अ पॉपुलेटेड एरिया, जहां पे लोगों को पता हो, जहां पे लोग देखें और जहां पे लोग आए। इसी तरह अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट बना रहे हो तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी ऐसी लोकेलिटी में होना चाहिए जहां पे लोगों को पता चले और लोगों को प्रमोट किया जा सके और लोग वहां पे अट्रैक्ट हों। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन चैलेंज है फॉर एंटरप्रेन्योर्स कि लोकेशन डिसाइड करना। और रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट देयर बिजनेस फ्रॉम देयर ओन होम। ये जितने आप सक्सेसफुल बिजनेसेस देख रहे हो इसमें मोस्टली जो हैं उन्होंने अपने घरों से, अपने घर के गैरेज से, अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया। यू नो अ वेरी बिग नेम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G, these were two friends। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने घर से, और कहां से स्टार्ट किया? साबुन बनाना शुरू किया, साबुन बना के बेचना शुरू किया। और अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल दुनिया के कौन से मुल्क में नहीं पाया जाता? उनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो बहुत से मुल्कों के जीडीपी से ज्यादा है। HP, आप जानते हैं HP को, ह्यूलेट पैकर्ड, इन्होंने कहां से काम शुरू किया? इन्होंने भी अपने घर के ड्राइंग रूम से काम करना शुरू किया। ड्यूपॉन्ट, ड्यूपॉन्ट 4 दोस्तों ने मिलकर अपने घर से काम शुरू किया, और ड्यूपॉन्ट केमिकल्स पूरी दुनिया में अब जाने जाते हैं। तो लोकेशन एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अब लोकेशन में अगर आप घर की लोकेशन अपना घर से स्टार्ट करते हो तो अगेन इसका फायदा तो है कि आपने अपनी बहुत सी फाइनेंस को बचा लिया, लेकिन फिर उसके अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे, ठीक है ना? हो सकता है ये उस एरिया के क्लोज ना हो जहां पे आपकी मार्केट का पोटेंशियल है। कल को इसकी वजह से कोई फैमिली में टेंशंस भी आ सकती हैं, कोई रिफ्ट अराइज हो सकता है। और फिर ये होता है कि अब आपका, क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो आपका बिजनेस चल रहा है वहां से, और एक आपकी प्राइवेट लाइफ भी तो है ना। तो फिर वहां पे क्या आएगा? वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, प्राइवेट लाइफ का भी और वर्किंग लाइफ का भी। कि किसी वक्त आप जब बड़ा इंपॉर्टेंट कोई काम कर रहे हो तो अचानक कोई गेस्ट आ गए, कोई गेस्ट को भी एंटरटेन करना है, अपना काम भी करना है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो जहां एक चीज के फायदे हैं वहां एक चीज के नुकसान भी हैं। So this is how this challenge of location is tackled. Okay, the next challenge is your competition, which is a very big challenge as well. Competition means when there are number of players in the market. जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको फास्ट फूड रेस्टोरेंट की, तो अब क्या यहाँ पे बहुत से फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है? आपने इस कंपटीशन को पहले ऑब्जर्व करना है कि वो किस किस्म की प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं उनकी, क्या उनकी प्राइस है, क्या उनकी मार्केट है, कौन से लोग हैं जो वहां पे आके, किस इनकम ग्रुप के लोग वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये सारा कुछ आपने पहले ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपने अपने वेंचर के बारे में सोचना है कि हमने कौन सी ऐसी चीज ऑफर करनी है इस मार्केट में, किस इनकम ग्रुप को टैकल करना है, किस एज ग्रुप को हमने अट्रैक्ट करना है। और बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि ड्यू टू दिस कंपटीशन जो नया वेंचर है वो फेल हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट चैलेंज इज बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, राइट? तो ये जो कस्टमर बेस बिल्ड करना है, ये अगेन इसके साथ कंपटीशन के साथ अटैच है। जाहिर है कि जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि कौन किस ग्रुप को, मार्केट के किस सेगमेंट को टैकल किया जा रहा है, तो नेचुरली आपने उसके हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उस मार्केट सेगमेंट को टैप करना है और अपनी कस्टमर बेस बनानी है। इसमें जितनी बेहतर प्रोडक्ट होंगी, जितनी इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगी, उतने लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे। जितनी बेहतर सर्विसेज होंगी,
जितने अच्छी आप परफॉर्म करके अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, इतने आपके कस्टमर बेस बढ़ेगी। आप आपकी सर्विसेज में कि आप मतलब पर्सनली कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको आप आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहे हैं, और वन ऑफ कस्टमर रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं, यानी हर एक कस्टमर को उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टैकल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप कंपीट भी अच्छी तरह से कर सकोगे और आपकी कस्टमर बेस भी बढ़ेगी। और ये एक जब कस्टमर बेस बढ़ेगी तो नेचुरली आपकी सेल्स बढ़ेंगी एंड योर द चांसेस ऑफ योर सक्सेस विल इंक्रीज। तो ये चैलेंजेस हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली फेस करके टैकल करके चलता है तो अल्टीमेटली ही रिमेन्स सक्सेसफुल। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम कर रही हो तो यू कैन आस्क मी आफ्टर 5 minutes फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू।